لا الہ الا حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین سجدوں بھری زمیں ہے، حسین زخموں بھری جبیں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ السلام علیکم ناظرین، آپ کی آواز کے ساتھ علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم موجود ہیں نثار حویلی میں۔ آج ہم آپ کو نثار حویلی کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہر سال مرکزی جلوس جو 10 محرم کا ہے وہ یہاں سے زیارت اور جلوس برآمد ہوتا ہے، اور مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے کربلا گام شاہ تک پہنچتا ہے۔ اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے، اس مقام کی تاریخ کیا ہے، اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، یہ جانیں گے ہم متولی وقف قزرباش لائسنس ہولڈر مرکزی جلوس نثار حویلی آغا جان علی قزرباش، جن کی نمائندگی آغا شاہ حسین قزرباش کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ نثار حویلی کی اہمیت کیا ہے اور جلوس کی تیاریاں کیسے ہوتی ہیں، اور یہ سلسلہ کب سے چلا آ رہا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مجھے پسند ہے جو شمالی آبادی کا ایک شعر ہے، ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر انسان پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ قوم کا لفظ میں نے اس لیے کیا کہ انسانیت کا شہنشاہ ہے میرا مولا و امام، انسانیت کا شہنشاہ ہے میرا مولا و امام حسین السلام۔ باقی رہا، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اس حویلی کی افادیت اور اس کی تاریخ 1836 میں غالباً تقریباً 2 صدیاں ہونے والی ہیں، اور یہاں پہ بہت بڑا اعزاز بخشا پروردگار نے حسین بادشاہ کی ماں نے ہمارے قزلباشوں کے، ہمارے پرکھوں کو، کہ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہے یہ شب عاشور ہمارے حصے میں آئی۔ جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن۔ اس میں جو سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی سوز و سلام پڑھنے والے آئے، ذاکرین آئے، علماء اکرام آئے، اور انہوں نے اس حویلی میں پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ سعادت محسوس کی کہ ہم نثار حویلی جیسی جگہ پہ ہم نذرانہ امام حسین علیہ السلام ادا کر رہے ہیں۔ اس میں بڑے جید قسم کے علماء دین، مطلب ہمارے مولانا بشیر انصاری صاحب ہوتے تھے، انہوں نے پڑھا یہاں پر، نسیم عباس صاحب تھے، گلفام صاحب تھے، اور بڑی بڑی ہستیوں نے، بلکہ یہ جو حویلی ہے، یہ حویلی کو امن کا گہوارہ بھی کہا جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ یہاں پر عبدالقادر آزاد صاحب جیسے بہت بڑی، مطلب شاہی مسجد کے بہت بڑے خطیب تھے، انہوں نے یہاں پر خطاب کیا۔ جس نے بھی اس حویلی میں امن کے لیے جو بھی کام کیا، جس میں آغا جان خود بھی چاہتا ہے، آغا جان نے خود بھی چاہا کہ یہ ہماری حویلی جو ہے یہ امن کا گہوارہ بنی رہے، اور جتنا بھی ان کا میسج، جتنا بھی مطلب اس وقت میں نے جتنی میٹنگ اٹینڈ کی تو انہوں نے مجھے ایک میسج دیا کہ مطلب امن کے، میری طرف سے امن کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم کسی کی دل آزادی نہیں چاہتے، ہم کسی کی دل آزادی نہیں چاہتے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ کفر کے بعد اگر سب سے بڑا گناہ ہے وہ دل آزاری ہے، چاہے وہ کسی مومن کی ہو چاہے کسی کافر کی ہو۔ ہمیں اپنا مسلک چھوڑو نا، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نا۔ اس کی افادیت دیکھیں کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی ہستی جس کا میں نام لیے بغیر چل نہیں سکتا، وہ قبلہ شجر حسین شجر صاحب نے 70 سال ماشاءاللہ یہاں پڑھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ قبلہ آپ نے نثار حویلی میں آپ نے اتنے سال پڑھا تو نوابین آپ کو کیا دیتے تھے، کیا ہدیہ دیتے تھے؟ تو انہوں نے کیا تاریخی جملہ، انہوں نے کہا یہ کم ہے کہ میرے جیسا شخص نثار حویلی جیسی جگہ پہ پڑھ رہا ہے، میرے جیسا شخص نثار حویلی جیسی جگہ پہ پڑھ رہا ہے۔ تو ہمارا جو یقین ہے، میں آپ کو ایک بات بولوں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جب یہاں پہ
शब अशूर को जुलजना की तैयारी होती है तो सुन्नी लोग आते हैं, सुन्नी लोग आके अपनी वो मुरादें लेके जाते हैं, वो मुरादें लेके जाते हैं, अपनी झोलियाँ भर के लेके जाते हैं, खाली आते हैं और झोलियाँ भर के लेके जाते हैं। ये अकबर, मैं आपके लिए एक अजीब सी बात बोलूँ, ये एक वाहिद अपना ये ज़ियारत है कि जिसमें हर शख्स की तमन्ना होती है, हर शख्स की तमन्ना होती है शब अशूर, शब अशूर हर शख्स की तमन्ना होती है वो किसी तरीके से जुलजना को हाथ लगा ले, वो जुलजना को हाथ लगा ले। उनकी तमन्ना है कि हम जुलजना को हाथ लगा लें। क्या वजह उसकी, वजह क्या उसकी कि हम हाथ लगा लें, इसको हाथ लगा लें। एक्चुअली कोई ना कोई वजह तो होगी ना कि लोगों के हाथ लगा लें। इस शबीए जुलजना ने, ये तो वफा का पैकर है। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी सजदा बजा ला रहे थे करबला में, उस वक्त इसने अपनी जबान में कहा कि या मौला मेरे आका, आप अपना आखिरी सजदा बजाएं, अपना सजदा, आखिरी सजदा, आपके हिस्से के तीर मैं खाऊंगा। और इसकी वफा की वजह से आज हम इसकी कदर करते हैं। करबला में करबला में किस किस का किरदार क्या था। वहां पे रिश्तों का तकद्दुस देखें, आपके रिश्ते कैसे थे। वहां पे आप देखें कि अगर आपको ये लफ्ज बोलूं कि नमाज शब में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, आपने तकरीबन 52 या 53 साल की उम्र में नमाज शब में परवरदिगार से दुआ से बेटी मांगी कि मुझे परवरदिगार, मुझे ऐसी बेटी अता कर जो मुझे सुकून दे। और ऐसे ही हुआ कि इतना चाहते थे कि ये बच्ची इमाम के सीने पे सोया करती थी। मैं पूछता हूँ, सवाल करता हूँ कि इमाम, क्या आपने इस बच्ची को इसलिए मांगा था, क्या इसका भी इम्तिहान था कि इसको भी तमाचे मारता रहा शिमर? और परवरदिगार ने क्या इश्क किया हुसैन से कि अपने इश्क में अपना पूरा कुनबा उठा दिया। आज आप देखें, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यजीद को गाली बना दिया। कोई सुन्नी, कोई वहाबी, कोई देवबंद अपने बच्चे का नाम यजीद रखने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, ये बिल्कुल आपने बात जो की है, ये इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। और जिस तरह आपने गाजी अब्बास की बात की, तो वो किसी शायर ने भी कहा है ना, वफा अगर सीखनी हो तो आप गाजी अब्बास के घराने से सीखें। तो वो कहते हैं ना कि शब्बीर से कौनैन अता सीख रही है, दारैन इसी दर से सखा सीख रही है, खुद को हाकिम वफादार बनाने के लिए अब्बास से हर ज़ात वफा सीख रही है। तो ये तो वो अकीदत वाले लोग हैं जो उनकी समझ में आने वाली बात है, ये हर किसी की समझ में आने वाली बात नहीं है। आगा साहब, एक सवाल ये भी है कि इसका नाम निसार हवेली ही क्यों रखा गया, मतलब क्यों पड़ा, इसकी क्या तारीफ है? जी, इसमें आप देखें कि अगर आप देखें तो मेरे पुरखों में, मतलब मैं ऑन टिप्स आपको अपनी काफ़ी 14-15 अपनी जद का नाम बता सकता हूँ। हमारे हेड थे नवाब नरोज़ अली ख़ान के ज़लबाश, नवाब हदायत अली ख़ान के ज़लबाश, नवाब अली रज़ा के ज़लबाश, नवाब अली रज़ा ख़ान के ज़लबाश, जो अली रज़ाबाद के नाम से, इलाका अली रज़ाबाद के नाम से, ठीक है। आगे उनके बेटे थे नवाब नवाज़िश अली ख़ान, नवाब नासिर अली ख़ान, नवाब निसार अली ख़ान। और ये नवाब निसार अली ख़ान के ज़लबाश जो थे, ये उन्हीं के नाम से मंसूब है ये हवेली, नवाब निसार अली ख़ान से। और नवाब निसार अली ख़ान के जो आगे बेटे थे नवाब फ़तेह अली ख़ान के ज़लबाश, उन्हीं के नवासे हैं ये आगा जान अली ख़ान के ज़लबाश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये हमारी हेड ऑफ़ द फैमिली भी हैं यही, और हेड ऑफ़ द फैमिली भी हैं। जब हम कभी कोई मुश्किल में फंसे होते हैं तो उस वक्त सब मशवरा वगैरह हम इन्हीं से लेते हैं, आगा जान से ही लेते हैं। जी हाँ, और ये इस वजह से इसका नाम निसार हवेली है। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा कि मसाइब और बयान यहीं पे इस मेंबर पे होता है, ये जो निसार हवेली आपके ये पड़ा हुआ है?
देखें यहाँ पे तो यकीनी तौर पे यहाँ पे तो एक आलम दीन बैठेगा मेंबर पे। ज़ाकिरीन कोशिश करते हैं हम मेंबर पे ना बैठे, वो ज़ाकिरीन कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि मेंबर रसूल पे बैठे। ठीक है, असल चीज़ बेटा इस वक्त मैं आपको बात बोलूँ, मैं साथ साथ आपको ये बात बोल दूँ कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से आप वाकिफ़ हैं। ठीक है, इंडिया भारत जो है वो हमारा दुश्मन है। ठीक है, और उसके पास एक ही कार्ड है जो वो प्ले कर सकता है, वो सुन्नी शिया का। लेकिन इस टाइम पे हमने अपने मेंबर से हमने कोशिश करनी है, हाँ, अमन का पैगाम दें। कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे कोई दिल आज़ारी, कोई ऐसी बात हो जिस पे मतलब मुल्क पाकिस्तान है ना, अगर मुल्क पाकिस्तान है तो सब कुछ है। अभी मीटिंगें मैंने की हैं, बल्कि मैं हैरान हूँ कि इमरान खान साहब का एक कोऑर्डिनेटर हैं अपने ताहिर अशरफी साहब ने उन्होंने मतलब हमारे साथ मीटिंगें की हैं। मैंने उनमें इतनी तब्दीली देखी है, मैंने उनमें ऐसी तब्दीली देखी है कि बाखुदा उनके आंखों में मैंने आंसू देखे हैं जब वो बीबी सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह का नाम लेते हैं, तो हुसैन का नाम लेते हैं, तो मैंने तो उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। तो इतना बड़ा पैगाम है ये कि मतलब हम भी, तुम ये ना समझना कि हम अलग नहीं आप लोगों से, हम आपके शाना बशाना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, 7 मुहर्रम को ना 6 मुहर्रम को यहाँ पे एक तारीखी अलम बरामद होती है 6 मुहर्रम को हज़रत अब्बास की, वो भी तकरीबन 200 साल पुरानी है, जो यहाँ पे वो अपना जो बरामद होती है यहाँ पर। और यहाँ पे माशाल्लाह जब वो हज़रत अब्बास के मुसाहिब पेश किए जाते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक वो, फिर 7 मुहर्रम को यहाँ पे 7 जुलजना मरकज़ी लाइसेंसी जुलजना निकाले जाते हैं, और एक मेहंदी वो भी लाइसेंसी वो भी निकाली जाती है। उसका मरकज़ जो है वो निसार वैली होता है। 7 जुलजना जब आएंगे, वो सातों के सातों जुलजना जो हैं, सातों के सातों जुलजना का मरकज़ ये निसार वैली होता है। सही। अच्छा आगा साहब, ये माशाल्लाह हमारे नाजरीन को आपने मतलब बहुत तफसील से, बल्कि हम भी उनमें शामिल है कि जो यहाँ पे आते भी हैं और मजालिस में भी आते हैं और हम मसाइब भी सुनते हैं सब कुछ, लेकिन हमें इतनी तारीख़ का नहीं पता था। ये आपकी मोहब्बत है कि आपने हमें इस काबिल समझा और इतनी तारीख़ बताई। आखिर में कोई पैगाम जो हमारे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे हो, जो शायद जिनमें हमें ये लगता है कि पेशेंस की बहुत कमी है, बर्दाश्त की बहुत कमी है, और न जाने क्यों मतलब जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं वो आपने भी अक्सर सुने होंगे, आपने भी देखे होंगे, ख़बरों की ज़िंदगी बने होंगे, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? मैं सिर्फ अपनी कौम को ये एक मैसेज दूंगा कि जब शब आशूर यहाँ से जुलजना की बरामदगी होती है तो कोशिश करें कि इसके तक़द्दुस को पामाल ना करने दें। इसके तक़द्दुस, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि इस पे इमाम सवार होते हैं। तो बच्चे भी ना, बच्चे उस रात जितनी एक दूसरे को जितना बर्दाश्त कर सकते हैं बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं, यहाँ हमारे बच्चे हैं ये, और ये जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, ये बच्चे जितना बर्दाश्त कर सकते हैं ये बर्दाश्त करें उस रात को। कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं। हमने अपनी रात को हमने बर्बाद नहीं करना। हमने इंशाल्लाह यूनाइट होके छोटा हो या बड़ा हो, सब ने यूनाइट होके इस रात के तक़द्दुस को पामाल नहीं करना। बस बहुत शुक्रिया आगा साहब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ये पैगाम सब तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।